Okay, so let me introduce myself. So myself Rajesh Upadhyay, and I have around 18 years of experience in software testing field, and more than 15 plus years experience in test automation. Okay, so I am working as a vice president in one of the MNCs in Pune, and since 2011, uh, I am like giving imparting the training sessions as well for the QA folks. So I have three branches. One is in Chandigarh, one is in Delhi, and third one is Pune. So as of now, we are operating all the classes online, but later on, after 1 or 2 months later, we will start the offline batches as well. So you can join later on, like suppose whatever the courses you are doing as of now. So after completion of this course, if you won't have enough confidence on this course, then you can join the offline batches as well. So there is no restrictions. You don't have to pay multiple times. Okay, so that's all from my side. So can you can we have quick introduction to all of you? Priya? Hello. Yeah. Yes, sir. Good morning, sir. I am Priyadarshini Priya Chaudhary, and I'm working as a manual tester, and I have 4+ years of experience in manual tester. So, for more growth, I want to join uh, automation course. That's all. Thank Okay, you. good. Dipali? Hi, good morning, sir. Myself, Dipali Vange, and I am working in TCS. Uh, and I want to move my job in manual testing, so I need to join manual testing class. Okay, good. Since I didn't get opportunity to work on manual testing because I don't have an hands-on experience. Okay. What about automation? That's no experience. Okay. Ruchi? I want to learn from scratch. Okay. Good morning, sir. Ruchi is here. Uh, I'm BSc B.Ed MCA. Currently, I had secured job as a PGT Computer Science in Navodaya Vidyalaya, Mm-hmm. Mandi, Pando. But because of some family reasons, I just quit the job, and now I am preparing. I going to prepare for manual testing to get my career secure in company as well. Okay. Neha? Neha, you are on mute. Again, you are on mute. Yeah, it's fine now. Bolo. Good morning, sir. My name is Vinay Sansi. Just completing my civil engineering. I want to manage testing. Neha, your voice is not clear. Just Okay, so Neha, just one question. So do you want to learn automation or manual testing? no manual testing. Okay, fine.
So are you working somewhere or you are fresher? The pressure. Okay, ठीक है. Go on mute. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Let me know once visible to you. दिख रहा है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. Okay. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से आपको लर्न करना है सारी चीज़ें. तो हमारी वेबसाइट है mindyourskills.com. यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है अपने आप को. ठीक है. तो यहाँ पे आप जाके सारे कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज डिटेल्स है जो हमारे पास अवेलेबल है. तो यहाँ से आप जाके ये सारे कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज को इन्फो को आप देख सकते हो. तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास है, राइट. और ये सारे कोर्सेज जो हैं वो मोस्टली टेस्टिंग से रिलेटेड है. तो सारे टाइप की टेस्टिंग के कोर्सेज हमारे पास है. तो ये चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे सिक्योरिटी टेस्टिंग हो, चाहे परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, ठीक है, चाहे ब्लॉकचेन टेस्टिंग हो, सारी चीज़ें. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं करने के, और हमारे पास से करने के क्या फ़ायदे हैं. वो सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ आप यहाँ से जाके इस लिंक से इस कोर्स पे जाओगे, क्या क्या कोर्स के कंटेंट हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट्स है आपको कोर्स करने के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख लेना. मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ टेस्टिंग के बारे में. ठीक है. तो प्रियदर्शनी, ये माइट बी, अभी मैं कुछ देर मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा. ओके. और बिकॉज यू ऑलरेडी इन मैनुअल टेस्टिंग, so might be you have to join the another batch. Okay, so I will let you know another batch timing for automation especially. Okay. So let me Can talk I about the let? first. Yeah, you can left for today at least. Fine. And ping me on WhatsApp like you have to join the automation batch only. Okay, fine. Okay. तो सबसे पहले हमें समझना है कि टेस्टिंग होती क्या है और टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं. व्हाट वुड बी द आवर एंड गोल, राइट. तो अगर हम जॉब की बात करें, आईटी में अगर हमें मूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल वर्टिकल्स होते हैं आईटी फील्ड में. जैसे कि हम डेवलपर बन सकते हैं, या तो जैसे ऑप्शंस हमारे पास क्या है, डेवलपर बनने का है, टेस्टर बन सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम बीए बन सकते हैं, स्क्रम मास्टर बन सकते हैं, या सपोर्ट में जा सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पे हम अब जॉब ले सकते हैं. तो अगर बहुत सिक्योर जॉब की बात करें, जैसे सपोर्ट की जॉब जो होती है वो सिक्योर नहीं होती, राइट. तो यहाँ पे अगर इजीएस्ट जॉब कुछ भी है, जैसे डेवलपर का जॉब अगर आपको करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत सारी कोडिंग वगैरह आनी चाहिए. ठीक है, तभी आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो. बट टेस्टिंग रोल ऐसा होता है कि सिंपली आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द कोडिंग. तो कोडिंग अगर आपको नहीं पता है, तो कोडिंग का मतलब ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जैसे हो गया सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, ये सारी चीज़ें. तो इनमें से अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो कोई बात नहीं. तो टेस्टिंग में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है. तो टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अप्रोच, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करते हो. पहली चीज़ होती है
दूसरी चीज, अप्रोच के साथ क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो, और तीसरी चीज होती है कि आप टूल्स कौन कौन सा यूज करते हो। जो मैनुअल टेस्टिंग है, टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेस्टिंग के बारे में समझो, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सारे स्टेप्स पे आते हैं। तो अगर टेस्टिंग को एक लाइन में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनीबॉडी हैव्स एनी आइडिया कि टेस्टिंग क्या होती है? Sir, may I? गुड। Sir, to check the software whether it is working as the expectations given by the client or the customer. या वेरी गुड, गुड आंसर। तो टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, और टेस्ट करने का ये मतलब नहीं होता, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमें टेस्ट करना होता है कि उसके अंदर कोई बग फाइंड करने के लिए, या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसको लोग टेस्टिंग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि जो भी चीज की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर उसका है कि नहीं, कि जिसके लिए उसको बनाया गया है उसका जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं। तो जैसे सपोज करो कि अगर हमें एक मशीन बनानी है, राइट, और उस मशीन का जैसे कुछ भी हम उसमें इनपुट देते हैं, जैसे मान लो सिंपल सा ऐसे समझो कि हमारे पास ये ग्राइंडर मिक्सर घर पे होता है, राइट, तो उसमें अगर हम कुछ भी चीजें डालते हैं तो उसको हमारे पास अलग अलग जार्स होती हैं, राइट। तो क्या चीज हमें उसमें ग्राइंड करना है, हम उसमें इनपुट देते हैं और मशीन को प्ले करते हैं, तो और आउटपुट हमें मिलता है। तो उससे आपको समझ में क्या आता है कि ये तो आपको लगेगा कि तो बहुत सिंपल काम है कि हमने इनपुट दिया और जस्ट हमने आउटपुट ले लिया, उससे ग्राइंड करके उसने हमें दे दिया। लेकिन ग्राइंड जब मशीन को करते हैं, ग्राइंड मशीन से करते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी होती है कि मशीन में नॉइज तो बहुत नहीं है। दूसरी चीज, कितने कम टाइम पे वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। तीसरी चीज ये हो गई कि अगर हम उस मशीन में बहुत ज्यादा देर तक, सपोज करो कि अगर हमें वो बैटर वगैरह बनाना हो इडली बनाने के लिए और उसको पीसना हो, तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और अगर 2-3 kg पीसना हो तो क्या मशीन 2-3 घंटे तक हीट नहीं होगा, या फिर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मशीन में, कहीं ब्लेड तो नहीं खराब हो जाएंगे उसके, ये सारी चीजें। तो जितने भी सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लगा के सोच सकते हो, राइट। तो अगर उसमें वैसे वैसा हम इनपुट डालेंगे और उसको ग्राइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म हमारा क्या हो गया, टेस्टिंग हो गया। तो टेस्टिंग हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन अगर हमने नया परचेज किया तो उसमें भी हम सारी चीज़ें चेक करते हैं ना कि सब सही है कि नहीं, कि ग्लासेस सही हैं, स्क्रीन सही है, सॉफ्टवेयर सही है, राइट। फिर उसमें आप अलग से सॉफ्टवेयर डालते हो, फिर कॉल करके चेक करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप फंक्शनलिटी उसमें करते हो कि देखते हो कि हाँ मोबाइल ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या टेस्टिंग के कंसेप्ट्स होते हैं बेसिकली, कैसे हम चीज किसी चीज को टेस्ट करते हैं। अब उसी में टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसी में टर्म आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करें हम। अब सॉफ्टवेयर का मतलब पहले समझना होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं इजिली विथ मल्टीपल टूल्स, विद द हेल्प ऑफ टूल्स। मे बी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सॉफ्टवेयर हमारे एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप मान लो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर यहाँ से ओपन करते हो, जैसे लेट से एक्सेल, अब ये भी आपका एक एप्लीकेशन है एक्सेल पे। तो एक्सेल से भी आपको टेस्ट करना हो कि एक्सेल सही से काम कर रहा है कि नहीं है कर रहा है, इसके अंदर जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोलो या इसको सॉफ्टवेयर बोलो, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो सॉफ्टवेयर बहुत वाइड होता है। तो सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो हमें जनरली क्या करना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी होती है ऑन टॉप ऑफ दिस ओएस प्लेटफॉर्म। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं उनकी जनरली टेस्टिंग हमें करनी होती है। तो चाहे वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो या फिर वो वेब बेस्ड हो। तो डेस्कटॉप बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सिंपली आप कोई भी EXE फाइल डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल कर लो लोकल मशीन पे, और उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन।
राइट। और कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये हो गया जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट जिसको आप किसी ब्राउजर में ओपन करते हो, जैसे google.com, facebook.com, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, राइट। ये सारे आपकी वेबसाइट्स हैं, इनको वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। ठीक है। अब इनकी अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल सा एक बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि फेसबुक है ये हमारा, facebook.com। तो इसमें के अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फेसबुक का ये यूआरएल, जो भी यूआरएल है इसको हम यूआरएल बोलते हैं, राइट, एप्लीकेशन का यूआरएल। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी वो समझना है। ठीक है। तो आप, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो पहले ऐसे नॉर्मली समझो, क्योंकि अभी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एक एप्लीकेशन दिया गया और आपको सिंपली टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग में होना क्या चाहिए कि जैसे आपने एप्लीकेशन ओपन किया, ठीक है, तो आपको क्या दिखना चाहिए। सबसे पहले facebook.com ओपन करें तो हमें क्या दिखना चाहिए, ये हमारी पहले रिक्वायरमेंट हो गई। कि अगर मान लो कि हमने ये यूआरएल ओपन किया और ये पेज एक्सपेक्टेड है हमारा और ये नहीं ओपन होता, कुछ और ओपन होता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रोग्राम में हमारे डिफेक्ट हो। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेसबुक की जैसे है कि फेसबुक यूआरएल जैसे हम लॉन्च करेंगे सबसे पहले हमें ये लॉगिन स्क्रीन पे लेके आएगा। अगर आप लॉगिन नहीं हो, अगर आप पहले से लॉगिन हो तो ये हो सकता है कि होम पेज पे सीधे लैंड करे। तो पहले रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो गई कि जैसे हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया हमारी ये लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब लॉगिन स्क्रीन को पहले हमें वैलिडेट करना होगा कि क्या क्या चीज़ें लॉगिन स्क्रीन पे आनी चाहिए, क्या क्या नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हो गया कि हमारे पास ये फेसबुक, ये एक लोगो है फेसबुक का, लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पेज पे। ठीक है। अब रिसेंट लॉगिन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिर आपको एक ब्लॉग दिखना चाहिए जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले वेरीफाई करनी होंगी कि ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ रही हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको इनवैलिड ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है। लेट से इनवैलिड ईमेल एड्रेस या यूज़र आईडी और इनवैलिड पासवर्ड डालो, लॉगिन पे क्लिक करो तो ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब यहाँ से अब लॉगिन नहीं हुआ तो एंड यूज़र करता क्या है, तो आपको हमेशा एक एंड यूज़र की तरह सोचना है कि आप टेस्टर नहीं हो, आप रियल टाइम एप्लीकेशन को टेस्ट यूज़ कर रहे हो। अब मान लो अगर यूज़र ने गलत यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन नहीं हुआ, तो अब वो लॉगिन कैसे करेगा, उसका ऑलरेडी अगर अकाउंट है, राइट, तो वो हो सकता है कि फिर से ट्राई करे लॉगिन का, तो फिर से अपना ईमेल आईडी डालेगा और फिर से पासवर्ड डाल के अटेम्प्ट करेगा। अगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो वो यूज़ क्या करेगा, फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक। तो ये लिंक वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो फॉरगॉटन पासवर्ड पे जब क्लिक करें तो वहाँ से अब वो अपना ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ से एंटर करेगा और सर्च करेगा पहले कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मान लो कोई रॉन्ग ईमेल आईडी या एड्रेस डाल रहा है तो ये बताएगा कि वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो आप हो सकता है कि आप फिर क्लियर हो जाओ कि हमारा अकाउंट ही नहीं है या हम गलत क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर से साइन अप पे जाओगे, हो सकता है कि साइन अप करना पड़े आपको। नहीं तो यहाँ से अगर आप वैलिड चीज़ें डालते हो तो आपको सिंपल सा वो आईडी पास यूज़र आईडी दिखेगा और फिर जब आप इसको सर्च करने के बाद तो ये आपको एक पासवर्ड जो है या ईमेल लिंक आपको मेल पे भेज देता है और वहाँ से आप क्या करते हो, वापस से अपने मेल को पासवर्ड्स को सेट करते हो। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आप रियल लाइफ में आप ऑलरेडी कर चुके हो ये सारी चीज़ें, कि आप किसी भी एप्लीकेशन में साइन अप करते हो, फिर उसमें लॉगिन करते हो, फिर उसमें जाके कभी पासवर्ड भूल गए तो अपना सिंपल फॉरगेट पासवर्ड का लिंक यूज़ करते हो। और इवन जब आप साइन अप करते हो तो पासवर्ड एंटर करते समय आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि किस टाइप का पासवर्ड होना चाहिए, कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें हमें नंबर्स इंक्लूड करने चाहिए, कैरेक्टर्स इंक्लूड करने चाहिए या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने चाहिए समथिंग। तो पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, वो भी चीज़ें आपको पता होती है। तो जनरली आप ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तो यही हमारा क्या है, टेस्टिंग है। अब अगर हमें जैसे फेसबुक को आप यूज़ कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं एप्लीकेशन में। तो इससे क्या हुआ कि आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मिलता है कि
एप्लीकेशन आपका यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है। तो ऐसे मान लो अगर कोई नया एप्लीकेशन बना, तो जैसे मान लो कि ये आपका हो गया एक एप्लीकेशन mindyourskill.com, अब आप इस पे नए हो, तो यूजर को तो नहीं ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन टेस्टर्स अब पहले इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे कि क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक तो होगी आपके पास रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको मिलेगी कि माइंड योर स्किल्स जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि टेस्टिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन लर्न कर सकते हो, जस्ट लाइक उडमी या फिर आप लेंडा बोल लो, ठीक है, या प्लूरल साइट बोल लो। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कोर्सेज को बाई कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। अब आपको ये एक ओवरव्यू समझ में आया कि अच्छा कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसको हमें टेस्ट करना है। तो इससे सिमिलर प्लेटफॉर्म पे अगर आपने को पहले से कभी भी काम किया है, या मतलब कभी भी आपने कोर्स परचेज किया हो उडेमी वगैरह पे, तो आपको थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज समझ में आएंगी। अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें डिफाइंड है। तो ये पोर्टल है, इस पोर्टल की फंक्शनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी पढ़नी है, फिर आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं कि डिफरेंट कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि आजकल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती। क्लियर होने का मतलब ये हो गया कि आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि क्या एग्जैक्टली करना है, क्योंकि अगर आप नए हो फर्स्ट टाइम, अगर आपको टेस्टिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्या हमें एग्जैक्टली टेस्ट करना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगेगा कि सिंपल सा है, ये साइट हमने ओपन किया और जस्ट ये इन्फॉर्मेशन हमें दिख गई, तो आप सोचोगे सब ठीक तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। राइट, अगर आपको साइट देख के लग रहा है कि सब ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये गलत है। तो यही हमें सोच हमारी सिर्फ चेंज करनी होती है टेस्टिंग फील्ड में। अब उसमें क्या होना आता है हमारे लिए यहाँ पे रजिस्टर बटन है, लॉगिन बटन है, कोर्स है, लोगो का ऑप्शन यहाँ पे है, समथिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है, सर्च ऑप्शन यहाँ है। तो हमें लगता है कि ये यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, लेकिन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही जगह पे है कि नहीं है, क्या ये सच में हमें ये दोनों बटन यहाँ चाहिए, ये दोनों लिंक यहाँ चाहिए, कोर्सेज यहाँ चाहिए, कि डिफरेंट डिजाइन में चाहिए। क्योंकि डिजाइन तो अलग भी हो सकता है ना, कि अगर आप उडेमी खोलोगे तो उसका डिजाइन अलग हो सकता है, क्योंकि एक साइड सिमिलर तो होंगी नहीं। सॉरी। तो उस सिचुएशन में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा पहले तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट में कि पर्टिकुलर जब हम माइंड योर स्किल्स ये पेज ओपन करेंगे, तो इसमें जो है सबसे टॉप पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, तो ये चीज अगर रिक्वायरमेंट में लिखी है कि जब भी पेज लैंड करेंगे तो एक लोगो का ऑप्शन आना चाहिए लेफ्ट साइड में, और थोड़ा सा स्पेस हटके, ऐसा भी नहीं कि लेफ्ट में है। अब जैसे ये लोगो यहाँ पे ना होके थोड़ा सा यहाँ पे होता पूरे लेफ्ट में, तो आपको लगेगा कि लोगो तो है पेज पे, कहीं पे भी हो, ऐसा नहीं है। तो रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने बोला है कि लोगो यहाँ पे होना चाहिए या पूरा का पूरा लेफ्ट पे होना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है। तो अगर क्लाइंट ने बोला है कि ये लोगो एकदम लेफ्ट में होना चाहिए पूरा का पूरा, तो ये लेफ्ट में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्पेस है तो इट मीन्स कि ये गलत है। तो हमारा काम क्या है कि जो क्लाइंट बोल रहा है हमें वही बना के देना है, ठीक है। तो अब इसमें रोल क्या क्या होता है, टेस्टिंग का रोल एक्चुअल में आया कैसे, और कैसे टेस्टर काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सब टेस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है, तो उससे पहले सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है। तो मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि मान लो मुझे एक ऐसे ही चैनल बनाना है, ठीक है, ऐसे ही एक वेबसाइट बनाना है कुकिंग की, जिसमें हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होंगे अलग अलग रेसिपीज के, कि हमें क्या क्या बनाना है, नॉन वेज वेज कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, राइट, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की स्पेशल डिशेज हो सकती हैं। तो सबकी अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं। अब अलग अलग कोर्सेज हैं, ऐसा ऐसा कुछ हमें पोर्टल बनाना है, ठीक है, और ऑनलाइन बंदा वहां से जाके पर्टिकुलर कोर्सेज को परचेज कर सकता है और लर्न कर सकता है। तो ये हमारी ऐसी हाई लेवल रिक्वायरमेंट हो गई। अब क्लाइंट ने सोचा कि हमें ऐसी एक वेबसाइट बनानी है,
या तो ऐसे समझ लो कि हमारे पास कोई स्कूल है, राइट? और स्कूल के लिए एक वेबसाइट बनानी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे हम सारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रहे हैं, कितनी फीस है, राइट? और कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किस किस टाइप के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल्स हैं, सारी चीज़ें। तो और अटेंडेंस मैनेज करना है, स्टाफ मैनेज करना है सेम एप्लीकेशन के अंदर, और वहाँ पे सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी के ऑप्शंस भी होने चाहिए, राइट? तो ये सारे फीचर्स अगर हमें एक एप्लीकेशन में चाहिए तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्लाइंट चाहता है कि हमारे पास एक स्कूल है, हमें एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करवाना है। अब वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाता है, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि ऐसी मुझे एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है। अब यहाँ पे दो तरीके के क्लाइंट होते हैं, एक टेक्निकल क्लाइंट, एक नॉन टेक्निकल क्लाइंट। अब टेक्निकल क्लाइंट का मतलब जिसको पहले से सॉफ्टवेयर फील्ड का कुछ आइडिया हो, तो वो क्या करेगा, वो तो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है? कि क्या क्या फीचर चाहिए और कैसा होना चाहिए वो चीज़, या आपको कई सारे रेफरेंसेस दे सकता है। और दूसरा नॉन टेक्निकल क्लाइंट होता है जिसको कुछ भी पता नहीं होता, वो बोलेगा कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कहीं किसी स्कूल का देखा होगा और वो बताएगा कि ऐसा रेफरेंस दिया है कि कुछ इस टाइप का समथिंग। तो जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी में आएगा तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले उसको पहले देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, ठीक है? तो वो फिर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले। अब ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है कि क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है पहले वो ड्राफ्ट करेंगे कि ये एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है और उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, ठीक है? तो पहले तो वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे और डॉक्यूमेंट बना के वापस से क्लाइंट को फिर से दिखाएंगे कि पर्टिकुलर यही फीचर आपको चाहिए। तो क्लाइंट बोलेगा यस नो व्हाटएवर, अगर वो ऐड ऑन करना चाहता है, हटाना चाहता है तो वो हटाएगा। अब साथ में यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर कंपनी के एक्सपर्ट्स होंगे वो उनको भी बताएंगे कि ये फीचर और भी आज के डेट में मार्केट में पॉपुलर है, ये भी फीचर और ऐड कर सकते हो, या ये फीचर अब नहीं दे सकते, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, व्हाटएवर। तो जितना जिसको एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से क्लाइंट से अभी डीलिंग चल रही है। तो समहाउ कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट रेडी हो जाता है और सॉफ्टवेयर कंपनी फिर क्या करेगी कि बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स उसमें क्या-क्या फीचर्स चाहिए, कितने दिन का डेवलपमेंट एफर्ट लगेगा, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लाइंट को बता देगा। और क्लाइंट क्या करेगा, ठीक है, उस कॉस्ट पे एग्री हो गया कि चलो लेट्स से कि 5 लाख रुपए में हमने ये सॉफ्टवेयर हम आपको बना के देंगे तो विद इन 2 मंथ। तो यहाँ तक डिस्कशन डन हो गई। जब यहाँ तक डिस्कशन डन होती है तो इसके बाद जब काम स्टार्ट होता है तब यहाँ से अब सोचना है कि एक सबसे पहले क्या होगी कि एक टीम बनेगी, ठीक है? अब टीम किसकी होगी? उस टीम में एक बीए होगा, ठीक है? बीए का मतलब हो गया बिजनेस एनालिस्ट, टर्म है, ठीक है? एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है? वो क्या करेगा, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो अभी उसने ड्राफ्ट करवाया था ना, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करके कुछ डॉक्यूमेंट बनाएगा। जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है एफआरडी। एफआरडी का मतलब हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है? ऐसे ही फिर एक बनाएगा बीआरडी। बीआरडी का मतलब हो गया बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो हर एक कंपनी में अलग-अलग क्राइटेरिया यूज़ होता है। तो कभी-कभी आप किसी वेबसाइट पे देखोगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स होंगे और किसी कंपनी में आप देखोगे तो कुछ और भी हो सकते हैं। तो हर एक कंपनी के अपने-अपने तरीके हैं काम करने का कि किसके पास कितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, कौन कोई प्रोसेस फ़ॉलो करता है, कौन नहीं करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर हमें ड्राइविंग करनी होती है तो ड्राइविंग्स के एक रूल्स बने हुए हैं, राइट? वो रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते। किसी लोग को टाइम बचाना होता है तो हो सकता है कि वो रॉन्ग साइड से भी चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटल कंपनी के ऊपर कि वो कैसे काम करती है, वो रियल टाइम प्रोसेस फॉलो करती है या शॉर्टकट्स यूज करती है, वॉटेवर। तो उसके हिसाब से प्रोसेस हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है? तो क्योंकि कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि हमें पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है।
डिपेंड करता है टोटली सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉइज पे कि वो कितना एक्सपर्ट है किसी चीज को कैसे करते हैं, क्योंकि एंड गोल उनका क्या है कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो बट मैं एक हाई लेवल स्टैंडर्ड्स आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, BRD FRD ये सारे डॉक्यूमेंट बनाएगा। लेटर ऑन कोर्स में मैं बताऊंगा कि ये सब डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो अब ये सबसे पहला लेवल हो गया कि डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो गया। अब इसी फेज को आप बोल सकते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी, वॉट सारी चीजें इसको बोल सकते हो। तो अब यहाँ से जब डॉक्यूमेंट बन गया तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, डेवलपर टीम के पास आएगा। अब डेवलपर क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा, रीड करके सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा है। अब डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया तो सेम टाइम अब मान लो कि आज के डेट से सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट हो गया है। तो आज के डेट से अगर हमने स्टार्ट किया 2 मार्च से, तो हो सकता है कि पहले एक वीक BA क्या करेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके ये 2 डॉक्यूमेंट बनाएगा। तो तब तक ये 2 वीक डेवलपर क्या करेंगे, ये 2 वीक टेस्टर क्या करेंगे, कंपनी बैठा के तो पैसे देगी नहीं, राइट। तो इन 2 वीक में क्या होगा कि डेवलपर जो है वो अपने रिक्वायरमेंट मतलब जो भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो किस टेक्नोलॉजी पे बनेगा, कि वो जावा में बनाएंगे कि एंगुलर JS में बनाएंगे, रिएक्ट में बनाएंगे या PHP में बनाएंगे कि .NET में बनाएंगे, कौन से टेक्नोलॉजी में ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, राइट। क्योंकि क्लाइंट ने अगर ये बोला है कि स्पेसिफिक हमें इस टेक्नोलॉजी में चाहिए, तो डेवलपर्स क्या करेंगे, वो सारी इंस्टॉलेशन वो सारी चीजें सिस्टम में सेट करेंगे। स्पेसिफिक अगर कोई है, और स्पेसिफिक अगर क्लाइंट ने नहीं कुछ भी बोला है, तो ये देखेंगे कि हमारे पास एक्सपर्ट्स किस फील्ड के हैं, तो किस टेक्नोलॉजी में ये ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। तो डेवलपर अपना एनालिसिस करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, और उसके अंदर के जो की कंपोनेंट्स होंगे कि कैसे इसको बनाना होगा उसके एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वीक में सेम वे टेस्टर्स क्या करेंगे, उस वीक में जो पहला वीक होगा, टेस्टर्स का काम ये होगा कि बेसिकली उसको समझना कि एप्लीकेशन जैसे अभी किसी भी स्कूल की वेबसाइट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो टेस्टर ऐसा क्या कर सकता है कि पर्टिकुलर बहुत सारे स्कूल्स को विजिट कर सकता है, ऑनलाइन सर्च कर सकता है और उनके एप्लीकेशंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, देखेगा क्या क्या फीचर होता है, कैसे होना चाहिए, राइट। और सारे एप्लीकेशंस में क्योंकि क्लाइंट जो है कोई ना कोई साइट का रेफरेंस दिया होगा, तो रेफरेंस से टेस्टर्स भी क्या करेगा, एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेगा कि कैसे चलना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो अब पहला वीक हो गया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्लियर है। अब डेवलपर जो है इसको देख के सॉफ्टवेयर डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया सेकंड वीक में। सेकंड वीक से क्या हुआ, काम चालू हो गया और डेवलपर ने एप्लीकेशंस को डिजाइन करना शुरू कर दिया। अब जब ये डिजाइन कर रहा होता है तो उस टाइम पे टेस्टर खाली है, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन कुछ लाइव नहीं होगी तब तक आप टेस्ट कैसे करोगे, एटलीस्ट कहीं होस्ट नहीं करेंगे तो आप टेस्ट कैसे करोगे। तो उसके उस टाइम पे टेस्टर्स क्या कर रहा होगा, ये भी इस रिक्वायरमेंट को देखेगा, राइट, कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपने कुछ टेस्ट केसेस लिखेगा। अब यहाँ से क्या आता है, टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस लिखने का मतलब ये हो गया कि क्या क्या एग्जैक्टली कंपोनेंट्स उसको टेस्ट करने हैं, कि जैसे कि लोगो कहाँ होना चाहिए, लॉगिन स्क्रीन जब एप्लीकेशन ओपन होगा तो उसमें लॉगिन स्क्रीन दिखनी चाहिए कि उसमें कंटेंट दिखने चाहिए, वॉटेवर। तो जैसे इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे डायरेक्ट कंटेंट दिख रहा है, लेकिन फेसबुक को लॉग किया तो उसमें डायरेक्ट लॉगिन मांग रहा है, राइट। तो ऐसी सारी चीजें उसको पहले लिखना होगा। तो टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे हर एक छोटे छोटे चीज की, क्या क्या चीजें एप्लीकेशन में होनी चाहिए उसके टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे उसके, और वो स्टेप्स कैसे उस चीज को टेस्ट करना होगा और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, राइट। तो जब तक सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा तब तक टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग टीम अपनी टेस्ट केसेस लिख रही होगी। और ऑफ कोर्स टेस्ट केसेस लिखने से पहले बहुत सारी चीज़ें उसको करनी होगी, कि टेस्ट प्लानिंग करनी होगी, टेस्ट की स्ट्रेटजी बनानी होगी। जैसे डेवलपर सारे कर रहे होंगे फर्स्ट वीक में, वैसे ही तो फर्स्ट वीक में जब आप एप्लीकेशन को विजिट करोगे तो अपनी प्लानिंग करोगे, अपनी स्ट्रेटजी सेट करोगे कि आप टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करने वाले हो। तो उसके बाद
जब सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, ठीक है, अब टेस्टर क्या करेगा, उसको टेस्ट करना स्टार्ट करेगा। तो टेस्टर कैसे टेस्ट करेगा? तो ये फंक्शनैलिटी को देख के सॉफ्टवेयर को डेवलपर ने डिजाइन किया। अब टेस्टर का भी काम वही है कि ये एप्लीकेशन को देख के, मतलब ये रिक्वायरमेंट को देख के एप्लीकेशन को टेस्ट करना कि क्या जो डॉक्यूमेंट में दिया गया था फंक्शनैलिटी, क्या डेवलपर ने सेम टू सेम वैसे ही बनाया है या डेवलपर ने कहीं पे मिस्टेक किया है। तो हमारी टेस्टिंग यहाँ पे घूम रही है डेवलपर के अराउंड, कि हमें क्या है कि डेवलपर्स पे ट्रस्ट नहीं है, राइट। तो अगर देखा जाए कि लोग डेवलपर पे अगर टेस्ट करें, ट्रस्ट करें, तो टेस्टर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, क्योंकि सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या डेवलपर ने प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किए कि जो भी रिक्वायरमेंट में दिया गया था सेम टू सेम उसने सॉफ्टवेयर को वैसे ही डिजाइन किया है कि नहीं? तो वही चीज हमारी टेस्टिंग टीम करेगी, टेस्टर का वही काम है। अब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेस्ट केसेस लिखा हुआ है, अब वो टेस्ट केसेस को देख देख के जाके प्रैक्टिकली एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ टेस्ट केसेस हमने कुछ लिखे हैं कि अगर यूआरएल लॉन्च करें तो हमें एक होम पेज पे लैंड होना चाहिए, और उस होम पेज पे ये कंटेंट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए, इस कलर में होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे पेज लैंड हो तो हमें लुक एंड फील इसका कुछ ऐसे दिखना चाहिए जैसा आपको दिख रहा है अभी। मान लो ये डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि नीचे हमारे बॉटम पे रिक्वेस्ट ए सेशन होना चाहिए, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक होना चाहिए, हेल्पलाइन होना चाहिए, न्यूज़ होना चाहिए, अपकमिंग बैचेज होनी चाहिए। सेम वे आपके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये सारे कंटेंट होने चाहिए, मेन्यूज होने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पहले वैलिडेट करना है। अब यूआरएल ओपन करने के बाद फिर आपको कोर्स सेक्शंस में जाना चाहिए कि कोर्स सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे कोर्सेज की सारी लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोर्सेज की लिस्ट बहुत बड़ी है तो व्यू ऑल का ऑप्शन दिया है कि नहीं डेवलपर ने, समथिंग। फिर मेन चीजें जैसे ट्रेनिंग्स, ट्यूटोरियल्स, इवेंट्स, फिर लॉगिन का बटन, रजिस्टर का बटन, ये सारी चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सब क्या है, अपने आप में एक एक टेस्ट केसेस होंगे जो टेस्टर क्या करेगा, वैलिडेट करना स्टार्ट करेगा। तो सपोज करो अगर उसने पहला टेस्ट केस लिखा कि एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद ये होम पेज पे लैंड होना चाहिए और होम पेज पे ये कंटेंट होना चाहिए, तो ठीक है टेस्ट केस पास। अब दूसरा होना चाहिए कि पर्टिकुलर अगर हम रजिस्टर्ड पे बटन पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि रजिस्टर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ और ओपन हो, तो रजिस्टर्ड के पेज पे जैसे क्लिक करें तो ये एक पेज ओपन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पे लिखा होना चाहिए साइन अप, ठीक है। अब मान लो, अब आपको लगेगा, देखो छोटी छोटी चीजें भी होती है टेस्टिंग में जो नोटिस करने वाली होती है, कि यहाँ पे साइन अप लिखा है बट अगर डेवलपर ने रजिस्ट्रेशन लिख दिया या रजिस्टर यूजर करके लिख दिया तब भी गलत है। ऐसा वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो डेवलपर बाद में ये भी बोल सकता है कि नहीं रजिस्टर में क्या प्रॉब्लम है, तो आप सीधे बोलोगे कि रजिस्टर प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर नहीं तो आपने अपनी मर्जी से रजिस्टर कैसे लिखा। सिंपल तरीका। तो अब ऐसी चीजें हो सकती है कि छोटी छोटी चीजें जो डॉक्यूमेंट में ना हो, राइट, डेवलपर ने अपने दिमाग से लिख दिया। अब टेस्टर वहां पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकता है कि आपने अपने मन से ऐसे कैसे लिखा। तो फिर से आप क्या करोगे, बीए के पास जाओगे और बीए से बोलोगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, या आप डायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए कि साइन अप होना चाहिए, राइट। तो जो डिस्कशन में आउटकम निकलेगा, अगर क्लाइंट या बीए बोलता है नहीं यहाँ पे साइन अप होना चाहिए, तो फिर साइन अप ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें कॉन्ट्राडिक्शनली हमेशा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे आपके पास हमेशा डेवलपर्स से। तो इसलिए हमें हमेशा चीजों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो डेवलपर ने लिखा है वो सही है। हमें हमेशा डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे होने चाहिए, दैट्स इट। सही है कि गलत है, अगर वो गलत भी है तो गलत ही हमें करना है। हम ये नहीं सोचेंगे नहीं यार यहाँ पे रजिस्टर करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे दूसरी चीज हो गई कि साइन अप जो है वो यहाँ पे ना होकर सेंटर में रहता तो ज्यादा अच्छा लगता। आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं। रिक्वायरमेंट में क्या है,
आपको सीधे सीधे मतलब एक साइड में आपको रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट को यहाँ पे आपको सीधे सीधे मैच करना होता है कि ऐसा है कि नहीं है। अब यहाँ पे साइन अप जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले डायरेक्ट मैंने सपोज करो रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो अब ये सारी चीजें बोल रहा है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि डेवलपर कुछ चीजें मिस कर दिया हो, कि इस पे वैलिडेशन ना लगाया हो, कि कोई भी बंदा इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर सकता है, कैप्चा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अब इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कि मान लो कि आपने यहाँ पे, अब इसमें भी बहुत सारे बग है एप्लीकेशन में, तो इसीलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे टेस्टिंग होगी। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, अब इसने बोला कि करेक्ट है, तो क्या 1 2 3 4 5 किसी का नाम हो सकता है? किसी का फर्स्ट नेम 1 2 3 4 5 हो सकता है? नहीं। तो मतलब यहाँ पे डेवलपर ने प्रॉपर वैलिडेशंस नहीं लगाई है। क्या किसी का नाम लास्ट नेम @ है समथिंग ऐसे हो सकता है? अब यहाँ से मैं रजिस्टर पे अगर क्लिक करूँ तो सिर्फ ये 2 फील्ड ही मैंडेटरी अभी बोल रहा है, बट इनमें कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पहले ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, लेट्स से @vcv डॉट, मैंने डॉट भूल गया, फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, या XYZ लिख दिया सपोज करो। अब देखो, जब इसमें XYZ लिखा तब भी ये बोल रहा है ईमेल रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे उसने वैलिडेशन ऐसा लगाया हुआ है कि ये XYZ नहीं लेगा, तो ये इसको ईमेल का फॉर्मेट चाहिए। तो लेट्स से मैंने फिर .com लिख दिया, तब देखो तब भी नहीं ले रहा है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर अगर ईमेल एड्रेस जैसा फॉर्मेट दो कि लेट्स से gmail.com या समथिंग, तब देखो ये ले लिया। तो मतलब यहाँ पे उसने प्रॉपर वैलिडेशन लगाया है कि ईमेल का फॉर्मेट सही होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो सबको पता है कि मोबाइल नंबर हमारा डिजिट में होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है, तो बता रहा है नॉट ए वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी उसने वैलिडेशन लगाया है, एटलीस्ट 10 डिजिट रिक्वायर्ड। अगर कम देते हो तो बोलेगा कि 10 डिजिट तो चाहिए ही चाहिए। अब ये भी मैसेज भी गलत है कि एट लीस्ट 10 डिजिट रिक्वायर्ड, तो मतलब क्या 10 डिजिट से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है मोबाइल नंबर। तो ये भी एक तरीके से देखो तो मैसेज यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इसको सिंपल सा लिखना था कि 10 डिजिट रिक्वायर्ड, या कंट्री कोड हटा के ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको देना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्यों लगाया? तो ये कंफ्यूजिंग है। तो ये भी एक क्या हो गया बग हो गया, डिफेक्ट है, राइट। अब चलो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, समथिंग कुछ नंबर डाल दिया 10 डिजिट, तो ये एक्सेप्ट कर लिया। बट व्हाट अबाउट दिस टू फील्ड? तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये 2 फील्ड में एटलीस्ट ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। आप किसी के नाम में नंबर्स नहीं यूज कर सकते, राइट। तो ये 2 की प्रॉब्लम्स हम रेज करेंगे, तो इसको बोलते हैं कि ये बग है या डिफेक्ट है प्रोग्राम में। इसको हमें रेज करना होगा डिफेक्ट को। अब डिफेक्ट रेज कहाँ पे करेंगे? तो हमारे पास टूल्स होते हैं बहुत सारे। बहुत सारे टूल्स होने का मतलब ये हो गया कि हम जब काम करते हैं ना, तो हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, कि जैसे टेस्ट केसेस कहाँ पे लिखेंगे, डिफेक्ट कहाँ पे रेज करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट स्टोर कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए होते हैं, तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। तो जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आज के डेट में जीरा यूज होती है, कहीं पे एलएम यूज होता है। ठीक है, एलएम का पहला पुराना नाम था क्यूसी, कहीं पे वो यूज होता है, कहीं पे बगजिला यूज होता है। ठीक है, कहीं पे मेंटिस होता है, मेंटिस बीटी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, टीएफएस है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टाइप के टूल यूज होते हैं बेस्ड ऑन कि आपका कॉस्टिंग, कि कौन सा कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर आप एमएनसीज की बात करो, तो मोस्टली 90% एमएनसीज में जीरा यूज होता है। तो हम जो आपको ट्रेनिंग देंगे इस टूल पे, तो आपको ये सिंपल इस जीरा के बारे में बताएंगे कि जीरा में जाके हम सारी चीजें कैसे करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारा ये टेस्टिंग का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट 70% थियरी होगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे कि कैसे किसी चीज को कर रहे हैं। जैसे मान लो यही चीज है कि हम टेस्ट कर रहे हैं,
तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया, बट इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे सारी चीजें थियोरेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ एक तरीके से। अब प्रैक्टिकल इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे एप्लीकेशन को प्रॉपर टेस्ट कैसे करना है, और इस जीरा टूल पे काम कैसे करना होगा। जीरा टूल में हम जाके डिफेक्ट कहाँ रेज करेंगे, फिर डिफेक्ट की ट्रैकिंग कैसे करेंगे, टेस्ट केसेस कहाँ लिखेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, अगर हम टेस्ट केसेस एक्सेल में लिख दिए तो बल्क अपलोड कैसे होगा, और आगे चल के बहुत सारे इसमें मॉडल्स होती हैं हमारे पास कि टेस्टिंग में कौन कौन से मॉडल्स हम यूज करेंगे, कि जैसे हम वाटरफॉल मॉडल में काम करेंगे, कि एजाइल में काम करेंगे, कि स्पाइरल होगा हमारे पास, कि कैनबैन होगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें हमारे पास होंगी। तो उन सारे के बारे में, उन सारे कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना, फिर उसको जीरा में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे डैशबोर्ड बनाएंगे, कैसे चीज़ों को ट्रैक करेंगे, कैसे हमारा जो डिफेक्ट का स्टेटस कैसे मूव होगा। ठीक है, डेवलपर फिक्स करेगा तो फिर कौन टेस्ट करेगा, तो हर एक का स्टेजिंग क्या होगा। ठीक है, कौन से मॉडल में हमें काम करना होगा, कौन सा लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ही हमें पढ़नी है डिटेल में। तो टूल हम इसमें जीरा यूज़ करेंगे, जिसपे पूरा का पूरा प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस एप्लीकेशंस को भी प्रॉपर टेस्ट करना है। तो कोई भी एप्लीकेशन आप उठा सकते हो रियल टाइम पे, और उस एप्लीकेशन को पहले प्रॉपर टेस्ट केसेस बना बना के, डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझना होगा, FRD BRD उसको समझ के, फिर उसके टेस्ट केसेस को लिखना, फिर उस टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, फिर समरी रिपोर्ट बनाना, फिर आपको भेजना। ठीक है, फिर बाद में एप्लीकेशन को साइन ऑफ कैसे देंगे, कि डिलीवर कौन करता है एप्लीकेशन को, एंड में डिलीवरी जो होगा वो टेस्टिंग टीम करेगी, कि क्लाइंट को हैंड ओवर करेगी कि ठीक है ये आपका एप्लीकेशन जैसा आपने बोला था वैसा हमने बना के दिया। ठीक है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी है, टेस्टिंग टीम की है। कि अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर में, तो वो सीधे सीधे टेस्टिंग एंड पे पहले आएगा, कि मतलब आपने सॉफ्टवेयर की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने को तो ठीक है, ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है, लेकिन सोचना इंपॉर्टेंट है, कि आप सही तरीके से सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। कि जैसे मैंने यहाँ पे सोचा, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सब सही है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। राइट, आपको लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा चीजें, अभी इसी पेज के अंदर कम से कम मैं 10-12 डिफेक्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा लगेगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो लगेगा नहीं सब सही है। तो यही सोचना इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिंग फील्ड में, और वो कैसे आता है, तो करने से। हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, तो जितना आप किसी एप्लीकेशन के बारे में सोचोगे, तो सोचना, और उसको एज ए एंड यूजर पहले तो एक जैसे आपको सोचना होगा कि डेवलपर ने क्या क्या मिस्टेक किया है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैच करना, फिर कभी आपको एज ए क्लाइंट बन के टेस्टिंग करनी होगी, तो सबकी अलग अलग टेस्टिंग हो जाती है, तो टेस्टिंग के लेवल्स हो जाएंगे। कि डेवलपर की तरह टेस्ट करना, तो जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गया, कि जो डेवलपर कोड लिखते हैं वो टेस्टिंग कैसे करते हैं अपने कोड की। ठीक है, तो वो जो अप्रोच होती है, यूनिट टेस्टिंग हो गया। अब उसके बाद हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सारी सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग मॉडल्स को आपस में कनेक्ट करके इंटीग्रेट करके फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। अब जब सारा एक प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया, अब एज ए एंड यूजर हमें जाके उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो सिस्टम टेस्टिंग हो गई, तो पूरे इंटायर सिस्टम की टेस्टिंग करना। अब उसी टेस्टिंग टाइप में एक आ जाएगा यूएटी टेस्टिंग। अब यूएटी टेस्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि यूजर उसको कैसे समझता है, कैसे देखता है उस एप्लीकेशन को, या उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा इस एप्लीकेशन से। ठीक है, उसी के अंदर फिर आ जाएगा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद जैसे अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं अलग अलग। फिर इसी टर्म में आ जाता है कि जब एक बार एप्लीकेशन पूरा एंड टू एंड टेस्ट हो गया, तो उसके रिग्रेशन टेस्ट केसेस फिर हमें लिखने पड़ेंगे। अब रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, फिर वो पिक्चर में आएगा फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग। राइट, तो टेस्टिंग के अप्रोच, टेस्टिंग के लेवल्स, ठीक है, टेस्टिंग के स्ट्रेटजीज, टेस्टिंग के टाइप्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना होगा वन बाय वन। तो जस्ट यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा था कि हमें कैसे चेक करना चाहिए, किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहिए कि सही है कि नहीं है। ओके, तो ये
ऐसे हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी को No, कोई डाउट? no, sir. No, sir. ओके, अच्छा है। रोहन आपने बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, यू आर ऑन म्यूट। नो डाउट सर। अच्छा, मुझे आपसे ये क्लियर करना था कि आपको मैनुअल टेस्टिंग करना था कि ऑटोमेशन करना था? ऑटोमेशन। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करके रखना, ठीक है, कि आपको स्पेशली सिर्फ ऑटोमेशन चाहिए। मैनुअल आती है आपको? नहीं मतलब थोड़ा आइडिया है, लेकिन मतलब दोनों कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ओके। रोहन आपको? हाँ सर, मुझे भी ऑटोमेशन ही करना मैनुअल आती है आपको? पहले से जॉब कर रहे हो मैनुअल है, में? दोनों करना अच्छा, दोनों करना है, ठीक है। ओके, तो ये जो बैच है अभी, इसके बारे में बता देता हूँ। ये बैच जो है अभी, ये मैनुअल टेस्टिंग की है, ठीक है। और पहले हम मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे और उसके बाद फिर हम ऑटोमेशन में मूव करेंगे। और अगर आपको ऑटोमेशन भी करना होगा तो साथ के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई बिग डील नहीं है। दोनों सिमिलर सिमिलर सा ही है। जो चीज़ यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं, वही चीज़ें सीधे सीधे हम ऑटोमेशन में करेंगे। तो यहाँ पे जो काम, जैसे मान लो, ऑटोमेशन का भी मतलब अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, कि जैसे यहाँ पे जो चीज़ हम एंटर कर रहे हैं, सारी चीज़ें वैलिडेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यही चीज़ ऑटोमेशन से भी होता है। और वो सिस्टम अपने आप ये सारी चीज़ करेगा। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको ऑटोमेशन के भी बारे में बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। तो यहाँ तक आपका ये मैनुअल टेस्टिंग के कंसेप्ट्स हैं, ये चलते हैं। अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो अब मान लो अगर सॉफ्टवेयर आपका बहुत बड़ा है, राइट, बहुत बड़ा है, तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से कि 5 to 10 टेस्टर्स हो सकते हैं कि आपको ज़रूरत पड़े किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। अब एक बार सॉफ्टवेयर टेस्ट हो गया, एक बार टेस्ट होके हमने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, तो ऐसा नहीं होता कि कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर वहां से शुरू होती है एग्जैक्टली। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज करो अमेजॉन हमारी एक वेबसाइट है, वहां से जाके सब लोग शॉपिंग करते हो ना, परचेज करते हो। तो सम टाइम हर 15 दिन पे या 1 महीने के बाद देखते हो कोई नई ऑप्शन आ जाती है कि डील्स के ऑप्शंस आ गए, या फिर आप अमेजॉन में कोई नया पेमेंट गेटवे ऐड हो गया कि अब आप किसी भी डिफरेंट, जैसे अमेजॉन से है तो आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब ये फीचर ऐड हो गया। या फिर आपका सेल्स जैसे आता है कि कोई सेल आया है कि पर्टिकुलर होली अब जैसे आने वाली है, तो होली में क्या होगा कि ऑफर्स निकालेंगे कि इस प्रोडक्ट पे इतना % ऑफर, ऐसे ऐसे करके। तो हो क्या रहा है कि सॉफ्टवेयर में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहे हैं, राइट। तो चेंजेस हो रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर में चेंजेस जब होंगे, कि सॉफ्टवेयर में सपोज करो कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, तो जो नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई उसकी वजह से कहीं पुराने पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ गया, ये पुराना वाला जो चल रहा था उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बार बार उस पूरे एप्लीकेशन को बार बार टेस्ट करना पड़ता है। तो मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि जो हमें पहले जो टेस्ट किया था, ठीक है, उसी को दोबारा टेस्ट करना। तो दो चीजें अब वहां पे टेस्ट करनी पड़ेंगी। एक तो जो पहले हमने टेस्ट किया था स्टार्टिंग में, वो सारी टेस्टिंग, और जो नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई उसकी भी टेस्टिंग, राइट। तो दोनों की टेस्टिंग अब हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अब जो नई टेस्टिंग हुई, लेट से 2 रिसोर्स हमने उसमें लगा दिया, तो चलो फिक्स करते हैं कि हमें एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए 5 टेस्टर चाहिए। में जो है 2 टेस्टर्स हमारे जो हो गए, वो न्यू फंक्शनैलिटी पे मूव कर गए, जो न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हुई है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और हमारे पास अब बचा जो पुराना एप्लीकेशन, उसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ 3 टेस्टर, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, काम बढ़ गया, बंदे वही है, तो कंपनी के अब लोड बढ़ गया आपके ऊपर कि वही काम आपको करना है, उतने ही टाइम में करना है, बट काम बढ़ गया।
अब कल के डेट में फिर से नई फंक्शनैलिटी आ गई और भी फंक्शनैलिटी ऐड हो गई 1-2 महीने में। अब फिर से हमें क्या करना होगा कि 2 यूजर नए फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं और 3 पुराने पे। तो फर्दर अब उसके पास तो पुराने वाले के पास और ज्यादा काम आ गया ना। अगर इसको नंबर में समझो, अब अगर मान लो कि हमने जो टेस्टिंग की फंक्शनैलिटीज को टेस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं, टेस्ट केसेस बना के, राइट। हम टेस्ट केसेस बना के उसको टेस्ट करते हैं। अब मान लो कि हमने स्टार्टिंग में 1000 टेस्ट केसेस लिखे थे। यहाँ पे ऐसे समझो कि हमारे पास 1000 टेस्ट केसेस थे और 1000 टेस्ट केसेस को टेस्ट करने के लिए पहले हमारे पास 5 रिसोर्सेस थे। अब फ्यूचर में क्या हुआ, 2 महीने बाद 1200 टेस्ट केसेस हो गए क्योंकि नया फीचर ऐड हो गया, बट रिसोर्सेज स्टिल हमारे पास 5 है, तो वर्कलोड बढ़ गया यहाँ पे। अब ऐसे ही फिर से क्या हुआ, 1400 टेस्ट केसेस बन गए हमारे 2 महीने और बाद, फिर भी रिसोर्सेज 5 है। तो मतलब देख रहे हो, काम 1.5 गुना हो गया बट रिसोर्स वही है, तो लोड बढ़ता जा रहा है टेस्टर्स के ऊपर। अब इससे क्या होगा, लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे और जॉब छोड़ने लगेंगे, कहेंगे कि पैसा उतना ही मिलना है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम हमसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब लोड बढ़ता है बंदे के ऊपर तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अब प्रॉब्लम क्या शुरू होगी कि आपको जबरदस्ती जब काम दिया जाएगा तो आप हो सकता है कि ईमानदारी से काम ना करो। अब आपको जो 1000 टेस्ट केसेस टेस्ट करने थे या 1200 टेस्ट करने थे, हो सकता है कि 100 टेस्ट केस आपने टेस्ट ही नहीं किया। भाई कितना लोड लोगे, 100 टेस्ट ही नहीं किया और बोल दिया कि हमने टेस्ट कर लिया, पास है। अब आपने टेस्ट नहीं किया, बोल दिया कि पास है, वो हमने टेस्ट किया है, झूठ बोला आपने। अब वो चीज जब प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होगी तो हो सकता है कि वहां पे डिफेक्ट आ गया, तो बाद में फिर से वो आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शनलिटी को आपने टेस्ट किया था, कैसे डिफेक्ट आ गया। तो आपके पास कोई जवाब देने को रहेगा नहीं, हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए फिर, अगर बहुत क्रिटिकल है तो। छोटा मोटा है तो चलता है, लेकिन अगर उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया तो बहुत सारे लेवल तक प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस वजह से अब कंपनी क्या करेगी, अगर इस सिचुएशन को फिक्स करना है तो कंपनी को यहाँ पे रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे कि भाई पहले 5 बंदे काम करते थे, अब यहाँ पे 7 बंदे हो जाएंगे, और यहाँ पे अब 9 बंदे हो जाएंगे, ऐसे। तो अब रिसोर्स बढ़ाएगा, जब रिसोर्स बढ़ेगा तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी। कि अगर मान लो पहले एक रिसोर्स को वो 3 लाख रुपए देता था, राइट, तो टोटल रिसोर्स 5 रिसोर्स को कितना दे रहा है, वो 15 लैक्स दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आ गया 21 लैक्स, यहाँ पे हो गया 27 लाख। तो बजट बढ़ता जा रहा है। अब जब बजट बढ़ रहा है तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ा नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि मार्केट में कंपटीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास फोन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास फोन खरीदने के। इस टाइम पे आपके पास अगर बजट हो 10 से 12 हजार, 10 से 15 हजार का एक रेंज हो, तो उसमें आपको कम से कम टॉप 10 अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फीचर वाइज फोन मिल सकता है। अब उनमें कंपटीशन है आपस में। कि पहले क्या होता था कि सैमसंग के मोबाइल्स महंगे हुआ करते थे, जैसे आज के डेट में एप्पल का कोई कंपटीटर ही नहीं है, एप्पल की अपनी ही क्लास है, राइट, उसका कोई कंपटीटर नहीं है। वो महंगे महंगे 1-1 लाख रुपए से ज्यादा महंगे महंगे के फोन बेच रहा है, और उसके आसपास भी कोई नहीं है उसके फीचर के साथ। कि वही सारे फीचर्स जो एप्पल के पास है वो हो सकता है कि आपको 10 से 15 हजार के मोबाइल में भी मिल जाए, लेकिन फिर भी लोग एप्पल खरीदते हैं, मतलब उसका कोई कंपटीटर नहीं, वो अपने आप में एक ब्रांड हो गया, राइट। बट अगर चलो एप्पल की बात छोड़ो, एप्पल के अलावा जैसे आपका रेडमी हो गया या फिर आपका सैमसंग हो गया, ठीक है, और आपका ऐसे ओप्पो है, वीवो है, ये सारे मोबाइल्स फ़ोन है। इनमें अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप कंपेयर करके फ़ोन लेते हो कि यार ये चीज़ हमें सैमसंग में 15 हजार में मिल रही है और रेडमी में हमें वही सारे फीचर्स 10 हजार में मिल रहे हैं, तो आप, रेडमी भी ट्रस्टेड ब्रांड हो चुका है, तो आप रेडमी खरीद लोगे। तो इससे क्या होगा कि अब सैमसंग की मार्केट डाउन होती जाएगी, तो सैमसंग वाला भी सोचेगा ना कि वही फीचर हमें अगर हम 15 हजार में बेचेंगे तो हमारा भी मार्केट डाउन तो होगा ही होगा। एकदम से बंद नहीं होगा, कुछ लोग तो सैमसंग ही लेंगे, लेकिन फिर भी डाउन तो होगा उसका मार्केट। तो वो भी क्या करेगा, फीचर्स को, फोन को सस्ता करना पड़ेगा अगर उसको मार्केट में अपने फोन बेचने हैं। वही सारे फीचर्स के साथ जो रेडमी के पास है उससे एटलीस्ट आसपास ही अमाउंट इसको रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से अगर सोचो, ठीक है, तो अब क्लाइंट है, एक क्लाइंट आपको पैसे पे कर रहा है,
तो आपने क्लाइंट को पहले साल बोला था कि हम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लेट से 50 लाख में बना के दे देंगे। अब नेक्स्ट ईयर आप कह रहे हो कि नहीं भाई, इस साल मुझे 70 लाख रुपए चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बोलेगा क्यों? तो आप बोलोगे कि ये काम बढ़ गया, हमने रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि बात सही है। ऐसे फिर नेक्स्ट ईयर कह रहे हो कि भाई हमें 90 लाख रुपीज चाहिए इस बार आपसे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स और बढ़ गए हैं। तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि यार हमें तो ओवरऑल मार्केट में अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तभी हम बेच पाएंगे, और ऊपर से इधर डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी बढ़ती जा रही है। अब मान लो क्लाइंट को कोई दूसरा कंपनी मिल गई, एक तो ये अप्रोच से कंपनी काम कर रही थी। अब क्लाइंट को एक दूसरी कंपनी कोई मिल गई, वो क्या बोलेगा कि आप हमें हर साल 85 लाख दो, हम हर साल आपको पैसा नहीं बढ़ाएंगे, आप हमें सिर्फ 50 लाख दो, हम आपका काम वही करके देंगे सेम कॉस्ट में, और 5 साल का एग्रीमेंट कर लो, 5 साल तक कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, काम आपका बढ़ता भले भी जाए। तो क्लाइंट को लगेगा यस, ये तो बेनिफिट है हमारा। तो क्लाइंट क्या करेगा, इस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी पे मूव कर जाएगा। अब इस कंपनी वाला यही सेम काम को कैसे इतने कम पैसे में वो डिलीवर करेगा, अब ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब पहली कंपनी क्या थी कि यही सारे काम को वो मैनुअल टेस्टर से करवा रही थी, जो सॉफ्टवेयर को मैनुअली टेस्ट कर रहे थे, तो टाइम ज्यादा लग रहा था और एफर्ट ज्यादा लग रहा है, पैसे भी देने पड़ रहे हैं, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो। अब इसने क्या किया, इसके पास ऑटोमेशन टेस्टर्स है। अब ऑटोमेशन टेस्टर्स क्या करेंगे, देखो अब यही 1000 टेस्ट केसेस हैं, 5 बंदे से शुरू हुआ, अब ये पांचों बंदे जो हैं वो हमारे ऑटोमेशन टेस्टर्स हैं। तो ये हमारे मैनुअल थे, ये हमारे ऑटोमेशन टेस्टर्स थे। अब ऑटोमेशन टेस्टर्स की सैलरी ज्यादा होती है कंपेयर टू मैनुअल टेस्टर। तो अगर इनकी सैलरी मान लो 15 लाख है, तो इनकी डबल जस्ट मान लो 30 लाख होगी। तो स्टार्टिंग में ही कंपनी ने क्या किया कि 5 ऑटोमेशन टेस्टर्स बनते हायर कर लिया। ठीक है। अब पहले जब एप्लीकेशन बना तो ये पांचों लोग मिलके, अब जिनको ऑटोमेशन की नॉलेज है उनको मैनुअल टेस्टिंग का कंसेप्ट तो पता ही होगा, क्योंकि बिना टेस्टिंग के कंसेप्ट्स के कोई बंदा ऑटोमेशन डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो पहले उसको मैनुअल टेस्टिंग पूरा पता थी, तभी वो ऑटोमेशन में मूव किया और फिर वो उसको ऑटोमेट कर दिया सारे एप्लीकेशंस को। तो ये क्या करेगा बंदा, 5 एप्लीकेशन की मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकता है और ऑटोमेशन भी कर दिया। तो पहले इन पांचों ने मिलकर इसको मैनुअली टेस्ट कर लिया और बाद में उसको ऑटोमेट कर दिया। अब जब फंक्शनैलिटी यहाँ से 1000 से 1200 हुई, तो 1000 तो पहले से ऑटोमेट है, तो नई रिक्वायरमेंट कितनी आई, सिर्फ 200। नया टेस्ट केसेस सिर्फ 200 आया, और इन 200 को काम किसको करना है, इन 5 बंदे को करना है। तो पहले 1000 टेस्ट केसेस पे ये काम करते थे 5 बंदे, अब ये सिर्फ इनको 200 करना है। क्यों? क्योंकि 1000 पहले से ऑटोमेट हो गया। ऑटोमेट होने का मतलब ये हो गया, अब 1000 टेस्ट केसेस की जो टेस्टिंग होगी वो मशीन अपने आप कर लेगा, उसमें किसी बंदे की जरूरत ही नहीं है। वो ओवरनाइट लगाया और काम खत्म। अब इसी टेस्ट केस को टेस्ट करने के लिए 1000 टेस्ट केसेस को 5 बंदे अगर टेस्ट करते तो हो सकता था कि इसको 10 दिन में, 10 डेज में टेस्ट करते इसको। लेकिन अब यही 1000 टेस्ट केसेस को टेस्ट करने के लिए अगर ये ऑटोमेट हो गया तो ये सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये डिफरेंस है। अब टाइम बच गया, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर किसी काम को 10 दिन में जो काम हो रहा था, अगर वो 2 घंटे में हो जा रहा है, तो मतलब पूरा पैसा बच गया और कोई रिसोर्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मशीन अपने आप ये काम करेगा। और ये मैनुअल टेस्टर्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे रिड्यूस हो गए। अब 200 सिर्फ, यहाँ पे 200 मैनुअल टेस्ट केसेस है, तो यहाँ पे सिर्फ अब 2 ही रिसोर्स की जरूरत है, 3 रिसोर्स किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएंगे अब। राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कितनी हो गई, वापस से अब आ गई कि लेट से 6 लाख का पैकेज था, तो यहाँ पे अब 12 लाख में अब अगले साल से काम शुरू हो गया। मतलब टेस्ट केसेस आपके 1200 हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बंदे इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 1000 ऑटोमेटेड है और सिर्फ 200 नए टेस्ट केसेस है, तो 2 बंदे इनफ है इसको मैनुअल टेस्ट करने के लिए। अब जैसे ही फिर ये 1400 होता है, तो ये भी जो 200 टेस्ट केसेस बचे थे इसके अंदर, वो भी इन्होंने ऑटोमेट कर दिए। राइट। तो अगली बार फिर से इसके पास 200 टेस्ट केसेस नए बचे ना, बाकी 1200 ऑटोमेट हो चुके हैं। अब फिर से ये 2 ही बंदे इसको हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे साल बाय साल, मंथ बाय मंथ टेस्ट केसेस बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास 20,000 टेस्ट केसेस होंगे और यही आपके 2 ही बंदे इसको काम कर रहे हैं।
और कंपनी का स्टिल बजट 12,000, या सैलरी इनकी बढ़ गई तो हो सकता है कि इनको 20,000 भी दे रहे, तब भी टोटल कॉस्टिंग कितनी कम है, तो नंबर ऑफ रिसोर्सेस कम होंगे। और ये 20,000 को टेस्ट करने के लिए भी हो सकता है कि मुश्किल से 1 और 2 डेज लगे। 1 और 2 डेज में ही एप्लीकेशन को पूरा का पूरा टेस्ट भी कर लेंगे। कैसे? क्योंकि ये मशीन चलेगा, जब मशीन से टेस्टिंग परफॉर्म होगी तो दिन रात मशीन टेस्ट चलेगा। तो जैसे आज के डेट में इंडस्ट्रीज में आप देखते हो कि हर तरफ ऑटोमेशन ऑटोमेशन। आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्रीज ले लो, चाहे बिस्किट बनाने की कंपनी ले लो, चाहे नमकीन बनाने की कंपनी ले लो, या आपकी दूध बनाने की कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली बन रही है, हर जगह मशीन है। मशीन क्या करता है, वो सारी चीज को बनाता भी है, पैकिंग भी करता है, लोड भी कर देता है, स्टिकर स्टिकर सब कुछ चपका के एमआरपी सब सेट कर देता है, सब कुछ मशीन ऑटोमेटिक चल रहा है एक तरफ से, राइट। तो वो क्या हो गया, उससे फायदा क्या होता है मशीन को? मशीन अगर कोई एम्प्लॉय रखेगा तो एम्प्लॉय वही काम करेगा, तो वो सिर्फ 8 घंटे का पैसे लेगा, 8 घंटे काम करके जाएगा, और 8 घंटे में मान लो कि उसने पैकेजिंग किया, राइट, कि 100 डब्बे को पैक किया 8 घंटे में। लेकिन अगर वही मशीन उसकी जगह पे आ गया तो मशीन तो 24/7 काम करेगा ना, उसको तो छुट्टी नहीं चाहिए, उसको तो आराम नहीं चाहिए ना। और वही मशीन एक दिन में हो सकता है कि 10,000 डब्बे पैक कर दे। तो एक बार कॉस्ट लगी मशीन की, लेकिन सिर्फ रिसोर्स एक ही लगेगा जो मशीन को ऑपरेट करेगा, बाकी सारा काम मशीन करेगा। तो किसी काम को करने में जहां 100 लोग की जरूरत थी, वहां पे हो सकता है 10 से 5 लोग में काम हो गया, बाकी लोगों की जो सैलरी बची उसको मशीन में लगा दिया, मशीन को खरीदने में, और अब कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई। तो वही सेम कंसेप्ट ऑटोमेशन इंडस्ट्री मतलब टेस्टिंग फील्ड में भी है, कि टेस्टिंग फील्ड में कम टाइम पे ज्यादा क्वालिटी और सस्ते में कैसे प्रोडक्ट डिलीवर हो, तो पिक्चर में आ गया ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो इसलिए आज के डेट में इंडस्ट्री में हर जगह सबको क्या चाहिए, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इसलिए हाईली डिमांड पे है। और सिर्फ इसी का पर्पस नहीं है, ऑटोमेशन का अनदर बेनिफिट भी क्या है, एक तो आपको सैलरी ज्यादा अच्छी मिलती है, नो डाउट। काम आपको स्मार्ट काम मिलता ही है, मतलब ये जो काम हो गया मैनुअल का, ये काम करते करते आप कुछ दिन में बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको सिंपल सा वही चीज करना है, फॉर्म ओपन करना है, फिर से वही डेटा टाइप करना है, फिर से सबमिट करके चेक करना है। तो सेम टाइम के काम करते करते ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको तो एक बच्चा भी कर सकता है अगर उसको सिखा दे तो। या कोई 10th क्लास का बच्चा हो, 12th क्लास का हो, उसको एक बार हमें ट्रेनिंग दे दे तो ये काम तो वो भी कर सकता है। तो हमारे और उसके में डिफरेंस क्या हो गया? अब यही काम मान लो आपने पहले साल किया, दूसरे साल किया, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आप यही काम कर रहे हो, तो पहली चीज तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सेम काम के लिए अगर मान लो हर साल आपकी सैलरी बढ़ती गई, पहले आप 3 लाख रुपए पे थे, 10 साल बाद आपकी सैलरी सपोज करो 12 लाख रुपए हो गई, एक फॉर एग्जाम्पल, जो कि कम है 10 साल के हिसाब से, और काम वही कर रहे हो, तो 12-10 साल बाद कंपनी को भी यही लगेगा कि यार ये काम हम इसको 12 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं इसी काम के लिए, हम क्यों ना फिर से दूसरे बंदे हायर करें जो 3 लाख रुपए में ही वही काम करें, तो हम इसको 12 लाख रुपए क्यों दे। तो हो सकता है कि आपको कुछ साल बाद जॉब से निकाल दे, क्योंकि भाई कंपनी है, अब काम तो वही करा रही है, तो काम कोई और भी कर सकता है, आप कुछ एडिशनल तो उसमें कर नहीं रहे हो। आपका काम क्या है, रिक्वायरमेंट देखना, रिक्वायरमेंट को पढ़ना, उसके हिसाब से एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना। अब वही ट्रेनिंग किसी और को दे दिया तो वो भी वही काम करेगा, तो आपको एडिशनल पैसे क्यों देगा वो? तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि चलो नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर वो सैलरी भी तो नहीं बढ़ाएंगे, प्रमोशंस भी नहीं देंगे, ऑन साइड भी नहीं देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट काम है, आप कंपनी का फायदा कर रहे हो, तो कंपनी, अगर आपको कंपनी 12 लाख रुपए दे रही है, तो अगर आप कंपनी को 24 दे रहे हो कमा के, तभी तो कंपनी आपको रखेगी। और वो सारी चीजें फुलफिल कैसे होती है, ऑटोमेशन से। आप बंदा वही है, लेकिन हो सकता है कि अभी जैसे ऑटोमेट करने की स्पीड है कि एक बंदा एक एप्लीकेशन को लेट से 1 महीने में ऑटोमेट करता है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हो सकता है कि 2 एप्लीकेशन आप एक ही महीने में कर दो। तो उससे आप कंपनी को कमा के दे रहे हो, इसलिए कंपनी आपको पैसे देती है। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए ऑटोमेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है। सिर्फ एक ही नहीं, एक तो सबसे पहली चीज बेनिफिट क्या हो गया, स्मार्ट वर्क।
कि ये काम ऐसा होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, आपको लर्न करना पड़ेगा और नई नई तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन्स हमेशा चेंज होती रहती है। कि अभी ये पुराने दौर की मशीन हो गई, अब नया मशीन आई है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो ऐसे नए नए ऑटोमेशन के टूल्स आते रहते हैं मार्केट में, और वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और उससे आप स्मार्ट वर्क आपका बढ़ता जाएगा, कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो आपको काम करने का भी मन लगा रहेगा, दूसरी चीज ऑटोमेशन की सैलरी भी ज्यादा होती है, तो मैनुअल टेस्टर से जस्ट डबल होगी। अब चूंकि आप कंपनी को बेनिफिट दोगे तो कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाती जाएगी और जॉब की कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं रहेगी। तीसरा बेनिफिट, जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसे होता है कि रिसेशन वगैरह आता है, रिसेशन आ गया तो भाई सबकी जॉब जाती है, तो उसमें भी ऑटोमेशन की जॉब सिक्योर होती है। क्यों होती है? कि मान लो कि आपके पास 3 डेवलपर है, ठीक है, लेट्स से एक ऑटोमेशन टेस्टर है और तीन एक आपका ऑटोमेशन का बंदा है और 3 डेवलपर है और लेट्स से 2 मैनुअल टेस्टर है। अब कंपनी को रिसेशन आ गया, रिसोर्स कब करने हैं, तो किसको निकालेगी? सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे कि ये जो काम कर रहे हैं, ये ऑटोमेशन वाला बंदा जो है, ये इन दोनों का काम कर लिया जाएगा, क्योंकि इसको ऑटोमेशन वाले बंदे को मैनुअल भी आती है और ऑटोमेशन भी आती है, ये दोनों सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, इसलिए सबसे पहले इनको फायर कर देंगे। अब फिर भी और कम फायर करना है, मतलब और भी फायर करना है, तो बंदे को और ले ऑफ करना है, तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको इसको अभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेशन का बंदा जो है, ये प्रोग्रामिंग नॉलेज है, इसको इसको प्रोग्रामिंग स्किल्स भी आती है, इसको जावा भी आती है, क्योंकि इसने सारे ऑटोमेशन जो किया है वो कोड लिख के किया है, तो मतलब क्या है, इसको जावा आती है और इनको भी जावा आती है। लेकिन ये जो बंदे हैं जावा वाले, ये ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे और ना ही टेस्टिंग कर पाएंगे। बट ये वाला बंदा जो है, मैनुअल टेस्टिंग का भी काम कर सकता है और बुरे वक्त में ये जावा के कोड भी लिख सकता है, एज ए डेवलपर भी काम कर सकता है। तो इसलिए फिर ये यहाँ से फायरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 बंदे फायर कर देगा, लेकिन फिर भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्सेटाइल बंदा है कि डेवलपमेंट भी कर सकता है, टेस्टिंग भी कर सकता है, और ये ऑटोमेशन जो कर रहा है वो ये दोनों तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के डेट में इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर है, तो वो डेवलपर से भी ज़्यादा पैकेज है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मिनिमम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बंदे को कम से कम, अगर अच्छी नॉलेज है, तो 15 लाख का पैकेज, एवरेज पैकेज है आज के डेट में ऑटोमेशन में। इतनी सैलरी मिलती है, और किसी भी मैनुअल टेस्टर को इतने पैसे जल्दी नहीं मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी ऐसी होगी भले ही पैसे पे कर दे, नहीं तो एवरेज अगर निकालोगे तो नहीं मिलेगा। आप ये सब सारी चीजें ग्लास डोर वगैरह पे जाके देख सकते हैं। तो इसलिए आज के डेट में इंडस्ट्री में ऑटोमेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और मोस्टली जितने भी बंदे हैं जिनको पहले से मैनुअल टेस्टिंग आती है, वो ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एक बंदे ने ज्वाइन किया था, क्या नाम था उसका, जो स्टार्टिंग में उसको ऑटोमेशन लर्न करना था, तो वो मैनुअल में ऑलरेडी 3-4 साल से वर्क कर रही है, लेकिन अब उसको ऑटोमेशन में मूव करना है, क्योंकि उसको पता है कि जॉब सिक्योरिटी, या अगर उसको बाहर जॉब चेंज करना है तो अब उसको ऑटोमेशन स्किल तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी मैनुअल टेस्टर आज के डेट में है, तो वो उसका गोल ही यही है कि उसको ऑटोमेशन आना ही चाहिए। अब अगर एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो गया है, तो ग्रो करना है उसको, तो ऑटोमेशन चाहिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि मैनुअल टेस्टर हायर ही नहीं करते, वो सीधे ऑटोमेशन हायर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे मार्केट में, फ्रेशर है, अब मान लो कि एक फ्रेशर हुआ, फ्रेशर्स को 3 लाख रुपए देना है, वो मैनुअल टेस्टर है, बट हमें ऑटोमेशन का फ्रेशर्स मिल गया, उसको भी 3 ही लाख रुपए देने हैं, तो चॉइस क्या होगी? तो कंपनी ऑटोमेशन वाले बंदे को हायर कर लेगी, क्योंकि उसको मैनुअल ऑटोमेशन दोनों आ रहा है सेम पैकेज पे, तो मैनुअल को क्यों हायर करे? तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये थी ओवरऑल कहानी पूरी की पूरी, कि इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है और कैसे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट ऑटोमेशन सीखने के लिए पहले आपको टेस्टिंग के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कि
मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, कैसे एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना है, तभी आप उसकी ऑटोमेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नहीं तो फिर आप डेवलपर जैसा सोचोगे, क्योंकि सोच तो टेस्टिंग वाली होनी चाहिए आपकी कम से कम, राइट। तो इसलिए ऑटोमेशन का प्री कंडीशन ही है कि पहले आपको मैनुअल टेस्टिंग के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और ये बैच है आपकी मैनुअल टेस्टिंग की। पहले आपको मैनुअल टेस्टिंग लर्न करना है, लेटर ऑन अगर जिसको ऑटोमेशन करना है तो सेम बैच कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको दोनों चीजें पैरेलली करना है कि कम टाइम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि मंडे टू फ्राइडे बैच रहेगी, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि 1-2 दिन मैनुअल की क्लास ले लें, 3 दिन ऑटोमेशन की ले लें, समथिंग। तो ऐसे पैरेलली हम 2 से 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टोटल अप टू यू है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो डेमो क्लासेस थे। तो रियल टाइम जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो प्रॉपर हम चैनल से चलेंगे सिलेबस वाइज कि कैसे कैसे चीजें करनी है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो। दीपाली, रुचि, नेहा। हेलो हाँ बोलो। हाँ सर, वो माइंड योर स्किल में कोर्सेस है ना, वो पेड है या फ्री? सब पेड है। ओके। Sir, can we have automation batches after 3 months or 4 months also? हाँ, तो हमारे पास तो देखो बैचेस तो कंटिन्यूअसली रहती हैं, Okay. ठीक है। हाँ, तो ऑटोमेशन की भी बैच पहले ही चल रही है, ठीक है। तो Actually, सारी sir, चीजें yeah, actually I have to do automation, but after 3 or 4 months. नो प्रॉब्लम, कभी भी आप कर सकते हो। Okay, sir. Okay, fine. Thank you. दीपाली, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नेहा आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो फिर हम फ्राइडे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। ऑटोमेशन टेस्टिंग में मतलब मोस्टली कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? मोस्टली जैसे आज के डेट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टूल है वो है सेलेनियम, ठीक है। Okay. सेलेनियम सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है क्योंकि उससे हम मोबाइल ऑटोमेशन भी, ब्राउजर ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे टेस्ट कर सकते हैं। और वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे पाइथन, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट। इनमें से अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप सेलेनियम को यूज कर सकते हैं। और जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सेलेनियम विद जावा है अभी के मार्केट के हिसाब से, अगर जिसको तुरंत जॉब चाहिए। पाइथन आई थिंक मतलब लास्ट ईयर मैंने सुना था कि अभी मोस्ट पॉपुलर पाइथन ही है। नहीं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन है, मतलब नहीं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट। जैसे होता है ना कि अभी आज के डेट में अगर आप सोचो कि मुझे आईटी में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब चाहिए, तो आपको बोला जाएगा कि आपको मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना होगा ना। तो ऐसे समझ में आता है, ऐसे सुनने में आता है, तो ये सही बात है कि ये हाई पेइंग है, लेकिन क्या आपको तुरंत जॉब मिलेगी? कोई भी स्किल्स हो, डेटा साइंटिस्ट अगर आपको मान लो बनना है, तो ये इजीली थोड़ी ना कि आप 1-2 महीने में डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे और आपको हाई पेड वाली जॉब मिल जाएगी। उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्योंकि कोई कंपनी अगर आपको 20 लाख रुपए पे करेगी तो वो नॉलेज भी आपके अंदर होना चाहिए ना, राइट। तो सेम ये मैकेनिज्म इंडस्ट्रीज में होता है कि सुनने में आता है कि ठीक है पाइथन पाइथन नो डाउट पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज, लेकिन अगर आपको क्विक जॉब चाहिए तो जावा सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है आज के डेट में। पाइथन हो सकता है कि आगे 2-4 सालों में सेलेनियम विद पाइथन ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन 80% इंडस्ट्रीज में आज भी जावा यूज हो रही है, और बाकी 20% में सारी हैं अदर। क्योंकि सबको क्या चाहिए? और सस्ते रिसोर्स। अगर सेलेनियम विद पाइथन के रिसोर्स होंगे तो महंगे मिलेंगे, और सेलेनियम विद जावा के सस्ते में मिल जाएंगे, तो कंपनी क्या चाहेगी? भाई हम जावा में क्यों ना करें, जावा में प्रॉब्लम क्या है आखिर में? ठीक है। The classes will be on alternate days. नहीं, आपको 1 दिन का टाइम दे रहे हैं डिसाइड करने के लिए Okay, okay, fine. कि क्या करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो बैच कल इवनिंग तक फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद फिर फ्राइडे से कंटिन्यू कर लेंगे। Okay, sir. Okay. फ्राइडे सेम टाइमिंग? हाँ सेम टाइम, ओके। बैच का टाइमिंग सेम रहेगा, ठीक है। Okay, sir.
ओके देन, आपका ये सेशन रिकॉर्डेड भी है, अगर आपको जिसको वॉच करना है वॉच भी कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको किसी फ्रेंड को भी भेजना है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर नहीं तो मुझे बता दो कि वो मैं शेयर कर सकता हूँ। लिंक लिंक आपको मिल गया है, ये लिंक जिसको भी आप दोगे वो ज्वाइन करके वीडियोस वॉच कर सकता है, ठीक है। तो फ्राइडे के बाद जब नया बैच हमारा बन जाएगा प्रॉपर, तो हम फिर इसको स्टॉप कर देंगे, तो सिर्फ आप जो क्लास अटेंड करेगा उसी को वीडियो का एक्सेस होगा, ठीक है। ओके देन, सी यू ऑन फ्राइडे, बाय। Okay, thank you. Bye.